तो चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर में हम प्रीवियस लेक्चर का एक पॉइंट जो हमारा बाकी था, और इस वीडियो लेक्चर में हम रीजनलिज्म इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, ये पॉइंट हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। सो लेट वी स्टार्ट। रशिया हैज़ मेड substantial progress in oil and gas production. Russia has emerged as an energy superpower. Economic stability has renewed the sense of national pride, leading to military assertiveness in recent times. Russia continues to influence Central and Eastern Europe, and it is a founding member of the Shanghai Cooperation Organization (SCO). Today, the Indo-Pacific region is gaining importance. Economic growth in Asia, led by China and other countries like India and Japan. Conflicts in the South China Sea, the importance of Asian and American interests in the Pacific region has contributed to the importance of this region. India is likely to play an important role in this region in the future. चलिए दोस्तों, रशिया ने तेल और गैस की प्रोडक्शन में काफ़ी मात्रा में बहुत बड़ी तरक्की की है। रशिया एनर्जी का एक सुपर पावर बनकर दुनिया के सामने आया है। हाल ही में वहाँ पर इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी की वजह से लोगों में देशभक्ति की भावना बढ़कर आर्मी का रोल बढ़ता हुआ दिखाई देता है। रशिया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर मेंबर होने की वजह से सेंट्रल और पूर्व यूरोप में रशिया का दबाव बना हुआ है। आज के दौर में इंडो पैसिफिक मुल्कों का महत्व बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चाइना और हिंदुस्तान जैसे मुल्कों की वजह से इकोनॉमिकल ग्रोथ, साउथ चाइना के समंदर का क्राइसिस, एशियन का बढ़ता हुआ महत्व और पैसिफिक जगह पर अमेरिका का बढ़ती हुई इच्छा से इन जगहों को कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्राप्त हुआ है। आने वाले कुछ सालों में इन जगह पर हिंदुस्तान का किरदार यानी हिंदुस्तान का रोल काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज रीजनलिज्म इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा. Regionalism is an important issue in international relations. Countries come together to either create or join some regional organizations. These organizations may be based on geographic proximity or on common political, ideological, economic, etc. Concern, while geographic linkage are important, sometimes some functional and infrastructural issues become the basis of regional cooperation. This can be in areas like transport and communication, energy, health, etc. The process of regionalism usually begins with a political dialogue amongst the participants. Similar ideological perspectives or economic concern may help the process of dialogue. Such a dialogue may lead to the creation of an organization. In the 1940s and 50s, regionalism in Asia and Africa focused on a political dialogue between countries. In Europe, the focus was on economic cooperation. For the example, Europe created the European Coal and Steel Community (ECC) 1951, the European Economic Community (EEC) in 1957, and the European Atomic Energy Agency Euratom 1958. In 1960s, the concept of regional cooperation spread. Asia and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) was created in 1960s. We saw the growth of regional organizations that focused on economic issues. Some regional organizations like the North Atlantic Treaty Organization (NATO) focus on security issues. In the post-Cold War era, the regional organization started to focus on issues of trade. तो दोस्तों,
आज हम पढ़ रहे हैं सर जंग के बाद का रीजनलिज्म यानी प्रादेशिकवाद। रीजनलिज्म यह इंटरनेशनल रिलेशंस की पढ़ाई में बहुत अहम और बहुत ज़रूरी पॉइंट है। जब आप इंटरनेशनल रिलेशन की पढ़ाई करती है तो उसमें रीजनलिज्म का पॉइंट काफ़ी महत्व रखता है। कोई भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण होना एवं उसमें किसी मुल्क का ज्वाइन होना, ये आमतौर पर हम देखते हैं या इसे देखा जाता है। यह ऑर्गेनाइजेशन या संगठन जोग्राफिकल और सियासी माशी इन सोच पर हो सकते, यानी इकोनॉमिकल और जोग्राफिकल और पॉलिटिकल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर, ये आइडियोलॉजी यहाँ पर काफ़ी महत्व रखती है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का खड़ा होना या उसे बनाते वक्त उनमें शामिल होने वाले मुल्क जो जोग्राफिकली अटैच होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा बिजनेस रिलेटेड और नेचुरल रिसोर्स से जुड़े हुए मुद्दों को बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके साथ ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट और कम्युनिकेशन, एनर्जी सोर्स एंड हेल्थ, यह सारी बातें काफ़ी मात्रा में ध्यान में देखी जाती है। रीजनलिज्म की शुरुआत सियासी बातचीत से शुरू होती है और यह बातचीत आगे बढ़ाने के लिए एक कॉमन आइडियोलॉजी, एक कॉमन इकोनॉमिकल रिलेशंस काफ़ी मददगार साबित होते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील होता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन का उसे स्वरूप प्राप्त होता है तो वहाँ पर इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल बातचीत से ही वो संगठन उभर कर सामने आती है। यही चर्चा से एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण होता है। 1940 और 1950 के दरमियान एशिया और अफ्रीकी रीजनलिज्म ने वहाँ के सियासी मुद्दों के ऊपर ध्यान देने का काम किया था, लेकिन यूरोप ने अपना लक्ष्य, अपना फोकस इकोनॉमिकल कोऑर्डिनेशन की तरफ दिया। फॉर एग्जांपल, इसका ही रूपांतर उन्होंने यूरोप में यूरोपियन कोयला और स्टील कम्युनिटी का स्थापना हुई ECSC 1951 में। इसके बाद यूरोपियन इकोनॉमिकल कम्युनिटी EEC 1957 में इसका निर्माण हुआ और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया यूरोपियन न्यूक्लियर एनर्जी कम्युनिटी यूरोटॉन 1958 में। यह संगठनाएं स्थापित हुई। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, 1940 और 50 के दरमियान एशिया में अफ्रीकी रीजनलिज्म में वहाँ के सियासी मुद्दों के ऊपर चर्चा की और वहाँ पर उन्होंने अपना पूरा कंसंट्रेशन सियासी मुद्दों के ऊपर दिया। हालांकि यहाँ पर यूरोप ने अपना पूरा कंसंट्रेशन अपनी इकोनॉमिकल कोऑर्डिनेशन की तरफ दिया। तो यहाँ पर ये दो अलग पॉइंट हमें यहाँ पर हाईलाइट करके दिखाई देते हैं। 1960 में रीजनल कोऑपरेशन इस कंसेप्ट का एशिया में तेज़ी से फैला हो गया। 1967 में एशियान की स्थापना हुई। 1960 में इकोनॉमिकल प्रिंसिपल के आधार पर कुछ रीजनल संगठनों का निर्माण हुआ। नाटो जैसी संगठनों ने सुरक्षा के ऊपर अपना ध्यान दिया। सर जंग के बाद के दौर में रीजनल ऑर्गेनाइजेशन संगठनों ने बिजनेस के ऊपर ध्यान देना शुरू किया। इसी वजह से इस दरमियान बहुत सारे बिजनेस ग्रुप बने हुए दिखाई देते हैं। इसी दरमियान कुछ बिजनेस ग्रुप का निर्माण हुआ। तो कई सारे मुल्क ने अपने इकोनॉमिकल रिलेशंस को मजबूत करने के लिए करीबी कुछ एग्रीमेंट के ज़रिए बिजनेस ग्रुप का निर्माण कर लिया है। बिजनेस में रुकावट जो होती है उसे दूर करने के लिए ये ऐसे एग्रीमेंट बनाए जाते हैं। इंपोर्ट के ऊपर टैक्स और लिमिटेशन, बाहरी मुल्क से जो कुछ लेन देन होता है इसके ऊपर लिमिटेशन, इस और बिजनेस में इस वजह से जो रुकावटें पैदा होती है तो ये एग्रीमेंट यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लेक्चर में हमने रशिया के बारे में और सर जंग के बाद जो उस वक्त का रीजनलिज्म था, तो आज के लेक्चर में हमने ये कंसेप्ट क्लियर किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।